Good morning. Today's class 7th, mathematics, topic is integer. So we will start with some basic concepts, or we can recall all what we have learned in previous class. हमने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा उसको थोड़ा रिकॉल करेंगे. तो इंटीजर्स सबसे पहले नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? माइनस इन्फिनिटी से, जीरो और कहाँ तक? इन्फिनिटी तक. तो इसका मतलब इंटीजर्स किससे बनता है? नेगेटिव नंबर्स प्लस होल नंबर. यानी जीरो प्लस पॉजिटिव नंबर्स. हमने ये भी पढ़ा कि इंटीजर्स को हम किस में कर सकते हैं? नंबर लाइन में ले सकते हैं. चलिए नंबर लाइन देखते हैं इंटीजर्स के लिए. सो इंटीजर्स के नंबर लाइन के लिए जीरो, ऑल द पॉजिटिव टर्म्स इन राइट साइड, 1 2 3 4 5 6, and all the negative terms in left side, -1 -2 -3 -4 -5. So in right side of zero we are having all positive numbers. In this side, that is in left side, we all are having negative numbers. Now number line, we also learned addition using number line. Let's recapitulate it. Say 2 plus 3 means 2. When we add a positive number, we move right. Positive number is added, we will move in right direction. How much? 3 steps. So 1 2 3, that is 1 2 3. So 2 plus 3 will make us 5. Now we will add a negative number. When we add negative number, we move left. So 2 plus minus 3 is equal to 2 plus minus 3. We are having 2 here, and then we are adding minus 3 to it. So 1 2 3. So we are having minus 1. So once again we will repeat it. What is important to note is when we add for addition, positive digit is added, positive number is added, we move right. Second thing is, if we add negative number, we move left. Let us check once again. Simple. Minus 1 plus 5 is equal to, so we are having minus 1 here, and then we are adding a positive digit, a positive number, 1 2 3 4 5. These are 5 steps. So after 5 steps we are reaching at 4. So minus 1 plus 5 is equal to 4. Now we will add a negative number. 2 plus minus 5. So we are adding minus 5 to 2. So 2 is here, and we are adding minus 5. Negative number. So for negative number we are moving in left. So 1 2 3
4, 5, and we are getting -3. We will check it again. Now we will take a positive number and we will add a positive number to it. So we are having 2, adding positive number 2, we will move again right, 1, 2, and we will get 4. Let's add negative number to a negative number. So -2 plus -3 is equal to. So first we will look at -2. -2 is here, and then we will move -3. 3 steps. Negative number is added, so we will move in left direction. So we are coming 3 steps in left. 1, 2, 3, and we will get -5. This is for addition. Now we will move for subtraction in number line. Please note it down. Let us do it. Now, in case of subtraction, when we are subtracting, what we will do, if we are subtracting a positive number is subtracted, we will move in left direction. Second, if negative number is subtracted, right direction. Let's do some example. अब कुछ एग्जाम्पल करेंगे जिनसे हम ये चीज देखेंगे कैसे होता है. चलिए, सबसे पहले we will take 2 positive numbers and subtract them. So let's take 5 minus 2. 5 minus 2. First locate 5. Here we are. Then minus 2. Negative number. Which sort of number we are subtracting? This number is positive. Positive number is subtracted. We will move in left direction. So we will go in left direction. So 1 step, 2 step. So 5 minus 2 is equal to 3. Now we will subtract a negative number. Let's take 5 minus 2. Then what it is going to be? We will change digit as our number line is not lengthy, so it took whatever is convenient. So 3 minus 2. Here we are subtracting a negative number. So what rule says negative number is subtracted? Hence we are subtracting a negative number. So we will move in right direction. So we will go in the right direction. So 3 minus. So first locate 3. Then minus of -2. Since negative number is subtracted, we will move in right direction. So we will go 1, 2. Then 3 minus -2 is equal to 5. Okay, Seema ma'am, I will take care. बच्चों, सब्ट्रैक्शन किया. सब्ट्रैक्शन में अगर हमने पॉजिटिव नंबर लिया तो हमें जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव नंबर तो हम लेफ्ट डायरेक्शन में यानी इस तरफ चलेंगे, और जब हम नेगेटिव नंबर चलेंगे तो राइट डायरेक्शन में यानी इस तरफ चलेंगे. हमारा राइट हैंड ये है तो राइट साइड ये चलेंगे, लेफ्ट साइड ये चलेंगे. एक एग्जांपल और लेंगे. इस बार हमने लिया -2
पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, हमने किया -2 में -3 इक्वल टू -2 को लोकेट किया, -3 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर है 3, तो हमने सब्ट्रैक्शन, ये माइनस तो ऑपरेशन है, ये तो ऑपरेटर है, और ये नंबर है हमारा, तो नंबर क्या है 3, और 3 क्या है, पॉजिटिव है, तो ऑपरेटर के बाद जो 3 आया है ये पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव किस तरफ जाए, पॉजिटिव नंबर के लिए लेफ्ट डायरेक्शन, ओके लेफ्ट 1 2 सॉरी 3 स्टेप थे, 3 स्टेप्स, सो मूव 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, we reach to -5. now we are adding -2 -3. now again we are using same order but we are using a negative number, so हमने ऑपरेटर तो वही रखा, माइनस ही कर रहे हैं, इधर भी माइनस किया, इस बार हमने पॉजिटिव नंबर रखा था, इस बार हमने नेगेटिव नंबर रखा है। अब क्या करें, देखिए -2 है, माइनस है, -3 है, हमें माइनस करना है, क्या माइनस करना है, -3 करना है, माइनस नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम राइट डायरेक्शन में जाएंगे, तो सबसे पहले -2 को लोकेट करेंगे, -2 इज लोकेटेड हियर, अब माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, -3, यानी 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो और वो भी क्या है, नेगेटिव नंबर है, यहां फोकस करिए कि ये नंबर हमारा नेगेटिव है, ये तो ऑपरेटर है, ये जो है ये ऑपरेटर है, ये तो माइनस का प्रोसेस है, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम, और किसका सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, नेगेटिव नंबर का, तो नेगेटिव नंबर के लिए क्या रूल है, वी विल मूव इन राइट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन में, ठीक है, तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, हम कहां पहुंच गए, 1, ये क्लियर है आप लोग को, चलिए अब कुछ चीजें बेसिक मूव करें, नोट करना है, नोट कर लीजिए, अभिजीत सर ये बिल्कुल ठीक है, नेगेटिव नंबर होता है, पर अभिजीत एक्चुअली नेगेटिव ऑफ नेगेटिव इज पॉजिटिव, ये सही है, आपने जो कहा वो सही है, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट नंबर लाइन का देना है, इसलिए नंबर लाइन में किस तरह से वो काम कर रहा है वो बताया है। नोट कर लिया होगा, मैं रैप करता हूं, आगे टॉपिक पे चलते हैं। चलिए ये नंबर लाइन यही छोड़ते हैं, और अब हम ये देखते हैं कि अगर दो नंबर्स हमारे पास, दो लोकेशन दे दी जाए, मान लीजिए ये लोकेशन ए है और ये लोकेशन बी है, सो वी आर हैविंग सम वैल्यूज, हमारे पास ए और बी की कोई वैल्यूज है कुछ, ए ये है, बी ये है, आपको दिखाई दे रहा है, ए की वैल्यू -3 है और बी 4 है, और अचानक बच्चा पूछता है क्वेश्चन कि सर ए और बी में कौन बड़ा है, क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन है कि कौन बड़ा है, बीच में कौन सा साइन आएगा, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, बताइए बच्चों कौन सा साइन आएगा, रिस्पॉन्ड करिए कि कौन सा साइन आएगा, तानिश चौधरी बताइए, कौन सा साइन आएगा, पूनम मैडम मैंने वेट किया था थोड़ी देर, थोड़ा सा, ओके चलिए देखते हैं, एक सिंपल बात समझना है कि जो नंबर लाइन है उसको अरेंजमेंट इस तरीके से किया गया है कि यहां इस तरफ जितना हम राइट में जाएंगे, राइट में उतना नंबर लार्जर होगा, बिकॉज नंबर लाइन इज एन अनएंडेड प्रोसेस, ये खत्म नहीं होता, तो ये ऐसे ज्यादा नंबर इस तरफ जा रहे हैं और कम से कम
कम कम नंबर इधर आ रहे हैं। तो हमारे को हमने देखा ए और बी में राइट में कौन है, राइट में बी है, तो इसका मतलब बी इज ग्रेटर देन ए। नंबर लाइन को यूज करके यही करना है हमेशा। नंबर लाइन में सोचिए थोड़ा सा, नेगेटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, सोचना है दो नंबर के बीच में कौन सा है। तो बस ये देखिए कि नंबर लाइन में कौन सा राइट साइड है, जो राइट साइड है वो बड़ा है। अब ये पॉजिटिव नंबर्स को कंपेयर करके देखिए, लेट दिस टू बी ए, दिस टू बी बी, तो 2 और 5 हम सब जानते हैं कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है। तो यानी 5 साइड है, राइट साइड है। आप अपनी नंबर लाइन बनाने के लिए आपको कहा कि नंबर लाइन बनाओ, और नंबर लाइन में हमेशा बच्चे उल्टा कर देंगे। वो क्या करेंगे, यहां से जाएंगे और यहां जाएंगे -1 -2 -3 -4। ये गलत है। क्यों गलत है, इसमें हमने फर्क से देखना है कि दो नंबर लेना है, सोचना है और देखना है ज्यादा वाला नंबर किस साइड है। तो यहां तो लगा -4 बड़ा है सर, बिल्कुल ठीक नंबर लाइन बना है, लेकिन ये कैसे नंबर है, नेगेटिव नंबर इसीलिए नेगेटिव है क्योंकि वो बात नहीं मानते। जैसे क्लास में कुछ बच्चे होते हैं ना जो बात नहीं मानते, तो वैसे ही वो नेगेटिव, वो बिल्कुल बात नहीं मानते। जब बात नहीं मानते तो उनको हमने क्या किया, ऐसे 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 कर दिया, जो थोड़ा अच्छा थोड़ा अच्छा थोड़ा अच्छा थोड़ा अच्छा थोड़ा अच्छा, तो जो अच्छे दोनों का प्रेजेंट है राइट में उसको खड़ा किया जो अच्छा है। इसीलिए देखिए आप अभी नेगेटिव नंबर को कंपेयर करते हैं। दो नेगेटिव नंबर लीजिए फटाफट। हमने ले लिया -4 और एक -1, और इसका नाम P, इसका नाम Q। पूछा गया P और Q के बीच कौन सा साइन आएगा, कौन सा साइन आएगा बताइए। धनंजय हम रिकैलकुलेट करेंगे इसको, जो आपने बोला है रिपीट करने के लिए, हम रिकैलकुलेट करेंगे एक बार। -2 is greater than -4, very nice. So Q is greater than P, क्योंकि Q किस साइड है, राइट साइड से, जो राइट साइड है वो बड़ा है। अब उससे भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताता हूं। जब यही क्वेश्चन में हम ये पूछते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, चलिए देखते हैं। हमारे पास दो नंबर है, एक है A और एक है B, और किसी ने पूछा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन A एंड B। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन A एंड B। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे है A और B के बीच में डिफरेंस है। उसने ये कहा कि A माइनस B निकालना है या B माइनस A। ये कैसे डिसाइड करेंगे, डिफरेंस मतलब क्या, मैथमेटिकली क्या कैलकुलेट करने के लिए उसने कहा है मुझे। तो जब भी डिफरेंस की बात आती है और सिंपल ऐसी लैंग्वेज में आए, तो डिफरेंस का मतलब होता है हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। मतलब जब डिफरेंस की बात आएगी तो डिफरेंस का मतलब होता है, दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस का मतलब है कि जो ज्यादा है उससे कम वाले को माइनस करना है। यही नियम है इसमें। अगर ये कोई बोले कि नहीं B माइनस ए करेंगे, A माइनस करेंगे, ये सब चीजें बेकार। ये तो वो है जो ये ऑपरेटर बेस्ड क्वेश्चन है, और ये हमें पहले डिफरेंस निकाल दो दो के बीच में। मैं ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा आपको कहां पे डिफरेंस के लिए, आपकी बुक में है क्वेश्चन, पहली एक्सरसाइज में है, हम उसे देखेंगे बाद में। लेकिन ये समझ लीजिए, अगर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कहा गया है तो हायर वैल्यू और लोअर वैल्यू। अब सबसे पहले हायर वैल्यू कौन सी है इसमें, तो आप इसमें से बताइए ए और बी में हायर कौन है। हायर वैल्यू कौन सी है ये बताइए। वेरी गुड, 4 इज ग्रेटर बी, तो B इज ग्रेटर, तो B की वैल्यू लिखो, तो हम निकालेंगे B माइनस E। हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू माइनस करेंगे, तो 4 माइनस माइनस B। अब क्या है, दो माइनस लगातार आ गए, इन्होंने पॉजिटिव बना लिया अपने आप को। कितना हो गया जी, 7 हो गया। सो डिफरेंस इज 4 माइनस माइनस 3 इज 7। क्या ये क्लियर है। ये क्लियर है।
कुछ नोट करना है, आगे बढ़े। चलिए एक बार और करेंगे। हम ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ये 0 और हमने 2-3 जगह लिया और उन सबके लोगों के सैलरीज लिखी, या हम ऐसा करते हैं टेम्परेचर लेते हैं, टेम्परेचर नेगेटिव होता है और एक क्वेश्चन भी आपके पास टेम्परेचर पे बेस्ड। तो हमने कहा कि चलिए ये दिल्ली है और इसका किसी दिन का टेम्परेचर 25 डिग्री, हमने इसको माना है हर एक उसको 20 डिग्री लेते हैं, और हर एक को माना है 10 10 10 20 30 40 50, ठीक है। और जयपुर ले लिया हमने, और जयपुर को ले लिया 30 डिग्री 10 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री, और यहाँ पे हमारे पास -10 -20 -30 -40 -50, हमने ये ले लिया। कोई ठंडी जगह ले लेते हैं, हम अंटार्कटिका ले लेते हैं, और -10 में हमने ले लिया ऊटी ले लो, -20 में हमने श्रीनगर ले लिया। अब क्वेश्चन में वही जैसा मैं कहा था आपको कि डिफरेंस जब आएगा तब ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू माइनस करना है। अब कोई पूछता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ दिल्ली एंड ऊटी। अब जब ये क्वेश्चन आ गया दिल्ली एंड ऊटी, तो दिल्ली का टेम्परेचर हमने देखा यहाँ पे, दिल्ली का टेम्परेचर तो 20 है, तो हमने लिख दिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सब डिग्री सेंटीग्रेड है, जगह कम है, बहुत छोटा है। आर्यन हम आ रहे हैं, एक के आ रहे हैं, हम वहां पहुंच रहे हैं। रिटन वर्स आई विल टेल यू, जस्ट आई फिनिश बेसिक ऑफ नंबर लाइंस। Chaco, you have asked question, sir, in integer both sides are equal or not? I am not getting your question. Both sides are equal or not? I am not getting your point. Now see, temperature of Delhi and Ooty. Ooty's temperature is -10 degree centigrade. Now first go through it. कौन सा बड़ा है, पहले ये देखेंगे बड़ा कौन सा है, क्योंकि हमें डिफरेंस, उसने ये नहीं कहा माइनस कर लो, उसने कहा डिफरेंस निकालो। डिफरेंस निकालना है तो माइनस तो करना है, ऑपरेटर तो माइनस ही है, लेकिन इसमें उसने ये नहीं डिफाइन किया ऊटी से दिल्ली को माइनस करना है या दिल्ली से ऊटी को माइनस करना है। अब इसको डिसाइड हम करेंगे, और वो कैसे डिसाइड करेंगे कि हायर टेम्परेचर किसका है। हायर टेम्परेचर दिल्ली का है, तो हम सबसे पहले दिल्ली का टेम्परेचर लिखेंगे। तो डिफरेंस इज इक्वल टू कितना, दिल्ली का टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऊटी का कितना है -10 डिग्री सेंटीग्रेड। So Reena, very good. Reena, you solved it. तो 20 माइनस 10 डिग्री, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों को मिलाया 30 डिग्री सेंटीग्रेड। सो डिफरेंस इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा आपकी बुक में भी है, पहला क्वेश्चन है, हम कल देखेंगे इसको। अभी एक और चीज बताना चाहता हूँ, एक बार और करेंगे, दो बोलेंगे, सिटीज लेते हैं। चलिए अब सब लोग निकालिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन श्रीनगर एंड जयपुर। श्रीनगर एंड जयपुर, प्लीज कैलकुलेट। श्रीनगर एंड जयपुर, कैलकुलेट। आई एम गिविंग यू 1 minute.
लालू तुम चले जाओ यहाँ से। So probably all of you must have solved it. Answer is 50 degrees centigrade. Many people are getting right. This Amrita, Reena, Preeti, Vijay. Your answer is wrong. Madhu, your answer is correct. Kajal is correct. Malika Manjari, answer is wrong. Sheeta Jha, answer is correct. Okay, let's do it. So for differences, so first we will check किसका टेम्परेचर अधिक है. श्रीनगर इज -20. व्हाट अबाउट जयपुर? जयपुर इज 30 डिग्री. सो ज्यादा किसका है? अब इसको ज्यादा भी देखने का तरीका है, सिंपल सी बात है. जो राइट में है उसको पहले लिखो, जो लेफ्ट में है उसको माइनस कर दो. तो राइट में क्या था? जयपुर. तो जयपुर का टेम्परेचर माइनस, हम क्या करेंगे? लेफ्ट में कौन सा है? लेफ्ट में श्रीनगर, तो श्रीनगर का कर देंगे. अब जयपुर का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, श्रीनगर का टेम्परेचर है -20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब हो गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड. एंड दिस इज योर आंसर. चलिए अब दोनों नंबर नेगेटिव लेके करते हैं. मैं रब कर दूं, मैं एक और माइनस में लेना चाहता हूं. चलिए ये तो इस तरीके से हुआ. क्या हमारी नंबर लाइन वर्टिकल हो सकती है? तब क्या करेंगे हम? चलिए देखते हैं. एक वर्टिकल नंबर लाइन बनाते हैं पहले फटाफट, और इसका यूज भी बताता हूं. सो वर्टिकल नंबर लाइन 0 रखा. जैसा मैंने कहा था कि हमने उसके लिए रखा था बड़ा साइड राइट में, छोटा साइड लेफ्ट में. इस तरफ भी हमने रखा है पॉजिटिव ऊपर, नेगेटिव नीचे. सो -1, -2, -3, -4 एंड -5. सो 1 2 3 4 5 इस तरह का भी नंबर लाइन बनता है, और ये वर्टिकल नंबर लाइन का भी यूज होता है. अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा देखेंगे. मान लीजिए ये फ्लोर के नंबर और ये अंडरग्राउंड पार्किंग है. -1, -2, -3, -4, -5 फ्लोर है, पार्किंग के है. और ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, ये तो ग्राउंड है. और उसके नीचे क्या है? अंडरग्राउंड पार्किंग, अंडरग्राउंड पार्किंग, अंडरग्राउंड पार्किंग. ऐसे मान लीजिए हमारे पास 3 पार्किंग है, और ये फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, फोर्थ फ्लोर एंड फिफ्थ फ्लोर. अब अगर कोई आपसे ये पूछता है कि एक आदमी -3, one man goes to third floor from from -2 underground parking. So how many story he traveled? क्वेश्चन इज, एक आदमी कुछ थर्ड इससे सेकंड पार्किंग से और थर्ड फ्लोर पे जाता है, तो वो कितने लेवल ट्रेवल किया है? अब देखिए ये क्वेश्चन वैसे ही है जैसे हमने उसमें किया था, बस उसमें हमारी जो लाइन थी वो हॉरिजॉन्टल थी, इस बार वर्टिकल है. तो कितने ट्रेवल किया, कैसे निकालें? फिर वही हमारा रूल क्या कहता है, हमने डिफरेंस निकालना है. डिफरेंस में क्या है? हायर माइनस लोअर. तो हायर माइनस लोअर, तो हायर माइनस लोअर वैल्यू. हायर वैल्यू क्या है? लास्ट पे कहां पहुंचा? 3 फुट पे.
थर्ड, माइनस लोअर वैल्यू क्या है, -2 अंडरग्राउंड, -2 अंडरग्राउंड, सो 3 + 2 = 5. Ganesh, very nice. Rajkumar, very nice. Ram is very nice. Manoj Kumar, very good. Let's continue. मिटाएं. चलिए अब सबसे पहले आते हैं कुछ इनके आइडेंटिटीज में. सबसे पहले एडिटिव इनवर्स की बात हुई. एडिटिव इनवर्स क्या होता है, उसके पहले हम बताएंगे एडिटिव इनवर्स से पहले नंबर लाइन में एक बार और एक क्वेश्चन है आप लोगों का. चलिए एडिटिव इनवर्स. को थोड़ा सा समझेंगे और बिल्कुल फटक से हो जाएगा हमारा आंसर, 2 मिनट में आ जाएगा. सबसे पहले एडिटिव आइडेंटिटी ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझेंगे. हमारे पास कोई नंबर है और उसमें अगर मैं कुछ जोड़ूं और वो नंबर वैसे का वैसे मुझे यहां मिल जाए तो उस नंबर को हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी. मतलब वो नंबर जो इसकी आइडेंटिटी को कीप रखता है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी ऑपरेशन से. ऐसे नंबर को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी. तो सबसे पहले एडिटिव आइडेंटिटी का यूज क्या है एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए. तो एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, ये देखते हैं. तो वो नंबर कौन सा होगा, अगर x है जिससे कि वो वहीं पे वही रिटेन करे, तो वो नंबर है 0. तो यानी हमारा एडिटिव आइडेंटिटी हो गया 0. यानी 0 को मैं किसी भी इंटीजर से -1 + 0 तो भी -10 + 0 तो भी -10. यानी इसकी आइडेंटिटी अपने आप में मेंटेन रही और इसने इसकी आइडेंटिटी को छेड़ा नहीं. तो एडिटिव आइडेंटिटी होता है 0. और वो नंबर जो एडिटिव आइडेंटिटी लेने में हेल्प करता है वो कहलाता है एडिटिव इनवर्स. वो कैसे, अभी देखिए. मानिए 3 है और उसके साथ मैंने कुछ जोड़ना है सच दैट मेरा आंसर है एडिटिव आइडेंटिटी. तो 3 + x = 0. तो x होगा हमारा एडिटिव आइडेंटिटी या एडिटिव इनवर्स. तो वो क्या होगा, यानी 3 में क्या जोड़ा जाए कि वो 0 ले आए. तो हमें पता है 3 में -3 जोड़ेंगे तो 0 है. तो यानी -3 हो गया एडिटिव इनवर्स. ये हो गया एडिटिव इनवर्स. और ये एडिटिव इनवर्स किसका है, ये एडिटिव इनवर्स है 3 का. तो जैसे ये इसका एडिटिव इनवर्स है, ऐसे ही -3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -3 का होगा एडिटिव इनवर्स 3. तो एडिटिव इनवर्स आर आल्सो नोन एज नेगेटिव ऑफ नंबर. वापस समझाते हैं एक बार और. सबसे पहले एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी वो नंबर है जिसको जोड़ने से या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आंसर को चेंज नहीं करता. जैसे मैंने बताया कि 0 को हम किसी भी नंबर में जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जैसे 5 है तो 5 + 0 कोई फर्क नहीं पड़ा, 5 का 5 आ गया. तो फिर इनवर्स क्या है, इनवर्स वो है जो इसको यानी एडिटिव आइडेंटिटी जो है उसको लाने में हेल्प करता है. जैसे 5 में हम क्या जोड़े कि हमारे पास आंसर 0 आ जाए, तो वो उसका होगा एडिटिव इनवर्स. तो 5 में क्या जोड़ेंगे 0 आ जाए, तो 5 +
जो नंबर है -5 इज इक्वल टू 0, सो -5 क्या कहलाएगा? -5 इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। किसका एडिटिव इनवर्स है -5? 5। अब उल्टा चलते हैं, अगर -5 इसका एडिटिव इनवर्स है, यानी ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के क्या आ रहा है? 0। तो 5 का एडिटिव इनवर्स है -5 और -5 का एडिटिव इनवर्स है 5। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स को दूसरा नाम है नेगेटिव ऑफ अ नंबर। वो कैसा? देखो 5 का जो नेगेटिव है वो क्या है? -5, तो -5 इज एडिटिव इनवर्स। सिंपल, साइन चेंज कर दो, -5 है तो इसका एडिटिव इनवर्स माइनस ऑफ -5 विच इज इक्वल टू 5 इज एडिटिव इनवर्स। डाउट क्लियर है एडिटिव इनवर्स का? चलिए कुछ एडिटिव इनवर्स निकाल दीजिए हमारे लिए। फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ, देखिए 10, 70, -2, -11। रिस्पॉन्ड करिए, बताइए आंसर। Krishna, very nice. Sucheta, very good. गलत कर रहा है गीता रानी। फर्स्ट 60 एंड सेकंड माइनस इट, वी आर नॉट सब्ट्रैक्टिंग और मल्टीप्लाइंग एनीथिंग। हम मल्टीप्लाई वो नहीं कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ 10 इज -10, 70 is -70 and -2 is +2, -11 is +11. So there is no use to write. We actually do not write positive sign. So 2 and 11 are answer. So let's move forward. Very nice. Many people responded. Susalini, Abhijit, Swada Singh and Avinash Gupta. Let's see. Move forward. Now question is, write down a pair of integer whose sum is -7. Now question says
राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -7। ऐसा इंटीजर ढूंढिए, दो होने चाहिए, एक पेयर मतलब हो गया दो इंटीजर होंगे और उनका सम कितना होगा, -7 होगा। मान लीजिए एक्स है एक और एक वाई है, लेकिन इन दोनों को जो है प्लस साइन है, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, राइट डाउन अ पेयर ऑफ सम है इनके बीच में, और आंसर दोनों को जोड़ने से कितना आना चाहिए, -7। चलिए हमारा आ गया कि x प्लस वाई इक्वल टू -7 आना चाहिए। तो हमने कहा चलिए देखते हैं क्या होगा। अब मुझे यहाँ पे नंबर पुट करने हैं, इस तरीके से पुट करने कि इनका नंबर -7 आए। अभी देखिए अगर मैंने x को इस तरीके का नंबर लिया, हमारे पास दो बातें, x पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं। चलिए एक पॉजिटिव नंबर लेते हैं x का, और हमने x का नंबर लिया, हमने कहा x की जगह है 10। अब 10 में मैं क्या जोड़ूं कि -7 आए। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल दिमाग रखना है। y कैसा है, कैसा नंबर होगा y, देखिए ये पॉजिटिव नंबर है और ये नेगेटिव नंबर है। सोचिए नंबर लाइन पे ध्यान दीजिए, 10 कहाँ पे है, 10 यहाँ कहीं पॉजिटिव नंबर में होगा, और 7 कहाँ है, इस साइड है, यानी कि इस तरफ का नंबर मुझे वापिस आना है और वो भी जोड़ के आना। जोड़ने में जब क्या कहा था कि जुड़ेगा और पीछे ना हो कैसा नंबर होगा, नेगेटिव होगा, यानी y ऐसा नंबर होगा हमारा, y एक नेगेटिव नंबर होगा। और कितना नंबर बड़ा होगा भाई, 10 से 7 तक पहुंचना है, 10 से 10 तक तो 8 लग गया और बाद में 7 स्टेप और चाहिए, यानी 10 प्लस -17 इज इक्वल टू -7। हमने कितना सफर किया, 17, माइनस डायरेक्शन में ऐड किया। जब एडिशन माइनस में होता है हम किस तरफ मूव करते हैं, लेफ्ट तरफ, तो -7। बोला नहीं सर हम तो x को नेगेटिव लेंगे, चलिए नेगेटिव ले लीजिए। तो एक पेयर क्या हो गया, एक पेयर हो गया हमारा आंसर 10, -17। दूसरा पेयर हमने कहा नहीं, और हम तो सर नेगेटिव नंबर लेंगे, चलिए नेगेटिव नंबर लेते हैं, और बच्चे ने ले लिया -5। चलिए -5 में क्या जोड़ें कि हमारा आंसर -7 आए। ये तो सामने दिख रहा है कि -5 है और हमें कहाँ जाना है, -5 यहाँ पहले आया होगा -5, और -7 उसके बाद आया होगा, वो भी किस तरफ डायरेक्शन में आया होगा, लेफ्ट में। अगर लेफ्ट में जाना है तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव नंबर ऐड करेंगे। तो हमने इसमें -2 ऐड किया तो -7। तो दूसरा पेयर हो गया -5, -2 सॉरी। अभी देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले ये हमें देखना है कि आंसर हमें जहां पहुंचना है वो लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा, और अकॉर्डिंगली ऐसा नहीं है कि एक लेगा नहीं, हम पॉजिटिव नहीं लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। अब ये तो मल्टीपल आंसर है, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। और एक आंसर देखते हैं हमने कहा नहीं ये नंबर पूरे गलत, अब हम नया लेंगे। चलिए एक नंबर सजेस्ट करेंगे, एक नंबर हमने ले लिया -5 लिया, या -7 ही एक नंबर लिया हमने। अब हमें उसमें कुछ जोड़ना है और आंसर आना चाहिए -7, ये तो बहुत इजी हो गया। इसको हम लेते हैं -9। अब क्या करें, अब यहाँ पे सोचो -9 कहाँ, -9 यहाँ नंबर लाइन में, और -9 के बाद -8, -7, -6, -5 ऐसे जाएंगे ना नंबर लाइन में। तो 9 से मुझे कहाँ जाना है, 7। अब मुझे किस तरफ जाना है, राइट साइड, राइट साइड जाना है, और एडिशन में राइट साइड जाना है तो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। इसका मतलब -9 में जो मैं ऐड करूंगा ये क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो -9 + 2 इज इक्वल टू -7। चलिए अब क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर। ये क्वेश्चन नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, 1 मिनट। चलिए अब हम क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट लाएंगे, हम सम की जगह डिफरेंस लेंगे।
चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में भी दे देते हैं। राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज नॉट इट। कल हम परसों हमारा क्लास होगी तब हम इसको डिस्कस करेंगे। हुज सम इज से -4। एक क्वेश्चन ये बनाएंगे, एक और लिखेंगे इसी के आगे। A pair of integer whose sum is whose sum is 5। लेकिन ये क्या होगा, पेयर ऑफ, यहां पे लिख लीजिए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, या छोड़ दीजिए, इतना कर लीजिए। ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए। नीतू आप रफ में नोट कर रहे हैं या फेयर में? अगर कॉपी है तो रफ में नहीं करें। राजकुमारी, डू नॉट टॉक टू निकुंज। नोट कर लिया कैलाश? ओके, अब हम इसमें बेटा नेगेटिव डिफरेंस को देखेंगे, डिफरेंस कैसे आता है। राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज डिफरेंस इज -10। हुज डिफरेंस इज -10, मतलब इनका जो डिफरेंस है वो -10 है। अब निकालते हैं कैसे आएगा पेयर। चलिए -10 हमने कहा वही डिफरेंस है, x - y = -10। हमारा -10 नेगेटिव साइड है। अब x हमने मान लेते हैं कि x हम पॉजिटिव ले कि नेगेटिव लें, चलिए पॉजिटिव लेते हैं। और मैंने x को लिया, एक बड़ा सा नंबर लूंगा 20। अब 20 में मैं क्या माइनस करूं कि -10 आ जाए। 20 किस तरफ था? नंबर लाइन के इस साइड था, और -10 है लेफ्ट साइड। मुझे राइट से लेफ्ट आना है, यानी पीछे जाना है, यानी नंबर ऐसा होना चाहिए, पीछे आना है, और माइनस है। माइनस में जब हम पीछे आते हैं तो नंबर कैसा होता है? पॉजिटिव। तो हमारा नंबर पॉजिटिव है। 20 से -30 किया, -10 है। अब उसमें उल्टा कर लेते हैं। x को मैंने -20 ले लिया, -y = -10। अब चाहिए y की क्या वैल्यू होना चाहिए? -20 तो और आगे चला गया, -20 से मुझे -10 पीछे की तरफ आना है। पीछे की तरफ आएंगे तो y क्या होगा? पॉजिटिव होगा। -20 माइनस राइट नेगेटिव होगा। वेरी गुड, मैं यही वेट कर रहा था। वेरी गुड कैलाश, वेरी गुड। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। अब हम थोड़ा सा आज की क्लास का रिकैपिचुलेशन करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था नंबर लाइन, और नंबर लाइन में हमने ये पढ़ा था कि नंबर लाइन में राइट साइड हमने पढ़ा था, याद है आप लोग को? नंबर लाइन में 0 इस साइड, पॉजिटिव नंबर्स इस साइड, नेगेटिव नंबर्स। पॉजिटिव में एडिशन करने के लिए अगर पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे तो वी विल मूव इन राइट डायरेक्शन, अगर नेगेटिव नंबर ऐड करेंगे वी विल मूव इन लेफ्ट डायरेक्शन। अगर सब्ट्रैक्शन की बात आएगी, हम पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर हमने किसी से पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट किया तो हम लेफ्ट में मूव करेंगे, अगर हम नेगेटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम राइट में मूव करेंगे। और इससे हमने आज वेरियस क्वेश्चंस किए। सो अगली क्लास में मैं सोच रहा हूं आप लोग अपने साथ अगर बुक मिल सके तो ठीक है, नहीं तो PDF डाउनलोड कर ले, और अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।